Yes, students, our country is very vast and total states of India are 28 states and 8 union territories. Clear? And in 8 states and union territories, each and every state has its own government. First of all, mark east, west, north, south. Then, as you will remember the names, first of all, as you know that in the northern side of our country, Himalayas are there. So you will mark physical features. Number 1 here. Yes. First physical feature, Northern Mountains. Yes. Then second physical feature of our country, that is Great Indian Desert. It is also called Thar Desert. The next physical feature of our country is Northern Plains. Then fourth physical feature of our country is triangular. That is triangular in shape. Why it is called peninsula? Because southern India is surrounded by water from 3 sides. Bay of Bengal, being a student of social science, you should have knowledge of our country's physical features in detail. Arabian Sea. Like it is a common understanding of the student, if you want to go Bombay, then you are on which side of India? Western, है ना? If you want to go Kerala, you are on which side of India? South or is east, western coastal plain. If you are on, if you are in the Chennai, you are on which side? South तो है. What here? Which plain? Eastern or western? For that you should know coastal plains. There are two coastal plains are eastern coastal plain and western coastal plains. Coastal plains का मतलब क्या होता है? Coastal. The plains which are near the coastal areas. और इन coastal areas में बहुत से ports हैं. Port cities क्या होती हैं? हाँ, जहाँ पे शिप लोड और अनलोड होते हैं. लाइक यहाँ पे देखा जाए तो कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे बॉम्बे, इधर गोवा, इधर केरला है, ठीक है, इधर क्या है, चेन्नई है, इधर विशाखापट्टनम है. These are the port cities. Some port cities on the eastern coastal plain, some port cities on the western coastal plain. Each and everything is a part of your syllabus, ठीक है. Fifth आपका हो गया coastal plain. Then sixth is island. Yes, island situated on the Bay of Bengal is Andaman and Nicobar. Island lies on the Lakshadweep, Arabian Sea is called Lakshadweep. And other than these physical features, Indian Ocean is here. Other than these physical features, you have to mark or you have to remember the neighboring countries also. Number 1, Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka.
Now, which are the 7 states which share land boundaries? Number 1, Pakistan, Afghanistan, Nepal, China, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. Which 2 states share doesn't share land boundary? तो आएगा श्रीलंका एंड मालदीव. मालदीव आप यहाँ पे मार्क कर. Here you will mark Maldives. Here, ठीक है. नेक्स्ट, अब इसके अलावा बच्चे आपको मैप में जो है फिजिकल फीचर्स और नेबरिंग कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज के अलावा आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट आवर कंट्री लाइज ऑन द नदरन हेमिस्फीयर. ठीक है, हमारी जो कंट्री है, अगर अर्थ को हम डिवाइड करेंगे ना 2 पार्ट्स में, तो वी कैन डिवाइड अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेटर, नदरन हेमिस्फीयर, सदरन हेमिस्फीयर. आवर कंट्री लाइज इन नदरन हेमिस्फीयर. अब इक्वेटर के ऊपर बेटा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो आवर कंट्री, यस, 1 लैटिट्यूड पास थ्रू आवर कंट्री, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे शो करना, यहाँ पे क्या शो करोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दैट डिवाइड द अर्थ इनटू, सॉरी, इंडिया इनटू 2 पार्ट्स, नदरन और सदरन इंडिया. तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लैटिट्यूड हमारी कंट्री से पास ऑन होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. विच लैटिट्यूड पास थ्रू आवर कंट्री? कैंसर. इट मीन्स हमारा कुछ इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल यानी कि इस एरिया में है, और कुछ जो है वो किस एरिया में है? इधर. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, नदरन एंड सदरन कंट्री. अब आ जाइए, अगर हमने अपनी इंडिया का टोटल जो है वो लेंथ या जो प्रॉपर सरफेस एरिया देखना है, तो टोटल कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल हमारी कंट्री का जो एरिया है. लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी कंट्री जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हाँ जी, यस साव्या, एनी क्वेश्चन बेटा? यस, यू वांट टू आस्क? यस मैम. मैम जो हमें मैप आएगा वो हमने ड्रॉ करना है कि फिजिकल मैप पे लेबलिंग करनी है सारी? लेबलिंग ओनली. हाँ जी. ओके मैम. हाँ जी गौरीश. यस मैम, मुझे मैम मैप में 2 डाउट्स हैं. एक तो मैम आप एक तो मालदीव शो कर दो, क्योंकि मैम कैमरा में थोड़ा सा ना है. नाउ यू कैन सी. यस मैम. और मैम एक मैम मुझे विंध्यास माउंटेन जो है मैम वो मैप में अच्छा से क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ पे है एग्जैक्टली. माउंटेन मैम विंध्यास. ओके ओके, आई विल क्लियर. एनी अदर डाउट? नो मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू. हाँ जी हरमीत. यस हरमीत, कीप ए माइक ऑन. हाँ जी बच्चे, आपका माइक ऑन नहीं. यस, the total area of India is 3.28 million square kilometer. But if we will draw a line from Jammu and Kashmir to Kanyakumari, the total length is 3,200 kilometer. यानी कि टोटल जो है वो इंडिया की जो लेंथ है जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो कितनी है? 3,200 किलोमीटर. क्लियर? तो अभी आपका जो मैप है वो बहुत हौच पौच हो गया है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्लेसेस हैं उसके लिए आई हैव टू ड्रॉ अनदर मैप. फॉर दैट वेट फॉर 1 मिनट. Yes. Now, if you want to know the total area from Gujarat to Arunachal Pradesh, then total area from Gujarat to Arunachal Pradesh, you have to draw a line here. That is
2900 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये एरिया पता होना चाहिए। क्लियर? हाँ, वो तो नेबरिंग कंट्री है ऑलरेडी ड्रॉ। अब इसके बाद है इंडिया की पोजीशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हमेशा आपको याद होना चाहिए कि इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है। इसका मतलब क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो ग्लोब पे उसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू क्या है। बच्चे, आप सबको पता है कि अगर हमने लैटिट्यूड ड्रॉ करनी है तो हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, अगर हमने लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करनी है तो हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं। ग्लोब पे ये राउंड होता है तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, अगर मैप में ड्रॉ करना हो तो हम स्ट्रेट ऐसे कर सकते हैं। द पॉइंट्स एट विच लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस विद ईच अदर, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है इसको? ग्रिड, ग्रिड कहते हैं। अब इसी के बेसिस के ऊपर हमें किसी प्लेस की पोजीशन पता लगती है। अब हमने ये जाना है कि हमारी कंट्री जो है कौन से लैटिट्यूड पे है और कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, तो उसके लिए हमें इसका पता होना चाहिए कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूड। आप सबको पता है कि हमारी कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में है, नदरन में है या सदरन में है? तो नदरन मीन्स यहाँ पे होगी। आप सबको पता है कि हमारी कंट्री ईस्टर्न में है कि वेस्टर्न में है, तो कौन सी, ईस्टर्न में है या वेस्टर्न में है? तो इट मीन्स हमारी कंट्री की एग्जैक्ट पोजीशन जो है, एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो इस पार्ट में होनी चाहिए। बट वी आर नॉट श्योर। हमें इतना पता है कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, हमें इतना पता है कि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू कि कौन सा लैटिट्यूड है कौन सी लॉन्गिट्यूड है। इसके लिए बेटा हमारी कंट्री में कुछ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो पास होती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर ये जो है वो लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड, और ये होगी लैटिट्यूड, और ये हो गई, यानी कि ये टोटल हमारा जो इंडिया है वो ग्लोब पे लैटिट्यूड के बीच में या लॉन्गिट्यूड के बीच में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमें जो लर्न करना पड़ता है, दैट इज, अगर आपको आता है द लैटिट्यूडनल वैल्यू, देन हु विल टेल मी हमारी इंडिया की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? रेज योर हैंड। वो आपने मार्क करनी है नॉर्थ। यस, व्हाट इज द एग्जैक्ट लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ आवर कंट्री? हाँ जी बेटा, गौरिश, वो तो स्टैंडर्ड मेरिडियन है। यस गौरिश। Yes, ma'am. Ma'am, 8 degree 4 north and 37 degree 6 north latitudes. Yes, And 8 हाँ नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड। अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ बेटा व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ आवर कंट्री, तो आपने बताना है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। इट मीन्स आप ये बता रहे हो कि हमारी कंट्री कौन से लैटिट्यूड पे है। तो इससे एग्जैक्ट हमें ग्लोब की कंडीशन का या जो ग्लोब इंडिया की लोकेशन है उसका पता लगेगा। देन अगर हमने लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू जज करनी है, यस हु विल टेल मी व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि हमारा जो इंडिया है कौन सी लॉन्गिट्यूड पे है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? लाइंस कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमारी कंट्री कौन से लॉन्गिट्यूड पे है ग्लोब पे? देन वी हैव टू रिमेंबर विच लॉन्गिट्यूड। ma'am, गौरिश हाँ जी। yes, ma'am, 68 degree 7 east and 97 degree 25 east हमें पता है कि longitudes. हमारी कंट्री नदरन हेमिस्फीयर में, तो इसलिए हमने नॉर्थ लगाया है। हमें पता है कि हमारी कंट्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए हमने ईस्ट लगाया। तो यू हैव टू रिमेंबर 68 डिग्री 7 ईस्ट, 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो ये हमारी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है। तो इस चैप्टर में आपको कितने ही डिजिट्स याद करने हैं ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हमने इंडिया का टोटल एरिया कितना है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारी कंट्री का टोटल एरिया है। फिर हमने याद किया कि अगर हमने जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी जो है वो प्रॉपर डिस्टेंस याद करना है, तो दैट इज 3200 किलोमीटर। अगर हमें डिस्टेंस याद करना है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, तो दैट इज 2900 किलोमीटर। और हमारी कंट्री से कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन हो रही है, तो उसकी डिग्री क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या होती है बच्चे? 23 degree 30 north. हाँ वेरी इजी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ।
हमारी कंट्री से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है उसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारी कंट्री नदरन हेमिस्फीयर में। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू, तो उसके लिए आपको लैटिट्यूड का मतलब होता है कि आपने एन डिनोट करना है, नॉर्थ, नॉर्थ बताना है कि हमारी जो कंट्री है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6। अगर मैंने आपसे पूछा लॉन्गिट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड पे है, तो आपको ये पता है कि अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो हमने ईस्ट ईस्ट साथ में लगाना है। 68 डिग्री 7 टू 97 डिग्री 25। तो ये आपको लोकेशन जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक और डिग्री लर्न करनी पड़ती है, दैट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30। वो कैसे बच्चे हम कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए। हाँ जी, यस। अब लॉन्गिट्यूड का मेन पर्पस क्या होता है, टू कैलकुलेट टाइम। टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ इट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट टाइम। बेटा हमारी कंट्री से बहुत सी लॉन्गिट्यूड पास ऑन हो रही है, यहाँ से लेकर हर 4 मिनट पे लॉन्गिट्यूड चेंज होती है, हर 4 मिनट्स पे लॉन्गिट्यूड चेंज हो रही है। There are number of longitudes. So which longitude we have to select? That will divide the country into equal parts. तो हमारी कंट्री में हमने कौन सी लॉन्गिट्यूड ली हुई है जो हमारी कंट्री को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है अकॉर्डिंग टू एरिया। और वो एरिया आपको पता कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर। यहाँ का जो टाइम होगा वो पूरी कंट्री का लोकल टाइम होगा। हाँ, तो ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये लाइन जो है ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स को क्या बोलते हैं, मेरिडियन। तो हमने क्या, ये जो मेरिडियन है इसकी डिग्री पता कितनी है, कितनी है डिग्री इसकी, 82 हाँ 82.5 मतलब 82 डिग्री 30 है। आप इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 82.30 भी लिख सकते हो, या मतलब पॉइंट के बेसिस पे। मतलब देखा जाए तो डिग्री जो है वो हमेशा आपने लिखनी है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ई क्यों लिखा है आपने, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ की जो डिग्री है 82 डिग्री 30 है, तो ये हमारी जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो 82.5। एक्सक्यूज मी मैम, क्लियर। तो इस जगह पे जो टाइम है वो पूरी कंट्री का टाइम होगा। सपोज अगर ऐसा ना होता, सपोज अगर हर कंट्री में अलग अलग लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ का टाइम अलग होगा, यहाँ का टाइम अलग होगा, यहाँ का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी वॉचेस को इस टाइम के अकॉर्डिंग सेट करती हैं, इसको बोलते हैं लोकल टाइम। तो विच इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, 82 डिग्री 30 ईस्ट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ही हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपको पता टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है कि टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम जीएमटी का टाइम देखते हैं, लंदन का टाइम, ठीक है। जो प्लेसेस लंदन यानी कि जो लंदन की प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट की तरफ है, उनका टाइम आगे होता है। जो प्लेसेस जो हैं वो वेस्ट की तरफ है, उनका टाइम। दिस इज द रीजन व्हाई इन इंडिया इफ इट इज अ डे, देन इन यूएसए एंड कनाडा इट विल बी नाइट, बिकॉज आवर टाइम इज अहेड ऑफ लंदन टाइम। हाँ जी। तो आपको ये याद करना है कि हमारी कंट्री की स्टैंडर्ड मेरिडियन कितनी है, 82 डिग्री 30, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे आ जाइए डिफरेंट जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। फिजिकल फीचर्स basically there are 6 physical features. First of all you have to write all the names and then one by one explanation can come in the short note. Number 1, first is physical features में first हमारा है नदरन माउंटेन। Excuse me ma'am, I have a doubt. Whenever we have to locate नदरन माउंटेन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नेपाल जो है
उसकी जो टॉप बाउंड्री है उसकी फर्स्ट रेंज बतानी है. That is the first range of Himalaya, that is called Greater Himalayas. Clear? Then northern mountain range can be divided into 3 ranges. Second जो है that is middle. Second आप बताओगे middle. That is middle Himalayas. Middle Himalayas को हिमाचल भी कहते हैं और इसको हिमाद्री कहा जाता है जो ग्रेटर हिमालयाज है. थर्ड जो नेपाल की लास्ट बाउंड्री है इसमें आप बताओगे शिवालिक. दैट इज थर्ड. इसको कहा जाता है शिवालिक भी कहते हैं और लोअर हिमालयाज भी कहते हैं. सो इफ आई विल आस्क अ क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन northern mountains. First of all, you will write that northern mountains lies on the northern side of India. Then second is northern mountain range are divided into 3 parts. Greater Himalayas is called Himadri, middle Himalaya is called Himachal, and lower Himalayas are called Shivalik. Third point, various hill station lies on these hill ranges. फोर्थ फिर आपने इनके यूजेस बताने हैं. दैट इज वेरी इजी. आप ये मत सोचना कि आगे हमें नदर माउंटेन्स के बारे में नहीं पता. यू विल टेल द यूजेस कि विच आर द यूजेस ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर. माउंटेन्स प्रोवाइड्स वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, हर्ब्स, ठीक है, वुड, टिम्बर फॉर फ्यूल. These are the different uses of northern mountains. So with this you can write 4 or 5 features of northern mountains. Can you write? Yes, can you write features of northern mountains? It is clear? Yes, Gaurish and Savya, still your hand is raised. Any doubt? What's your name? Yes, ma'am. Yes, मैम हमें ऐसे आ सकते हैं कि ड्रॉ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. हाँ जी मैम हमें मैप का ऐसे आ सकते हैं कि ड्रॉ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. Okay, ma'am. It is the reason why I am telling you on the map, so that each and every concept should be clear to you. Why I am drawing on map, so that it should be clear why 82.5 is the standard meridian, because it divides the earth or it divides the India from north to south into 2 parts. This time is common time, ताकि confusion से बचने के लिए हर states जो है पूरी country का एक ही time है. लेकिन आपको पता है कई countries में जहाँ पे area बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे टाइम जोन जो है वो अलग होती हैं. कई कंट्रीज में 2 टाइम जोन्स होती हैं, कई कंट्रीज में 3 टाइम जोन्स होती हैं, कई कंट्री में 4 टाइम जोन्स होती हैं. ऐसे एरियाज में उन कंट्रीज में एक ही टाइम पीरियड पे अलग अलग एरियाज का टाइम अलग होता है. क्लियर? अब आपने देखा होगा कि जब आपके रिलेटिव फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं इंडिया से उनका टाइम डिफरेंट है, लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे उनका टाइम डिफरेंट होगा. अगर सपोज वो यूएसए पहुंचते हैं, कनाडा पहुंचते हैं, उनका टाइम डिफरेंट होता है. ऐसा इसलिए होता है कि वर्ल्ड में सभी कंट्रीज का टाइम जो है वो अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू डे लाइट एंड द मूवमेंट ऑफ यू कैन से आर कॉन्टिनेंट एंड द पोजीशन ऑफ आर कंट्री इन फ्रंट ऑफ द सन. आपने रीजन पढ़ा हुआ है रेवोल्यूशन, रोटेशन. रोटेशन का मतलब होता है द पार्ट्स विच आर इन फ्रंट ऑफ द सन दैट एक्सपीरियंस डे एंड द पार्ट्स ड्यूरिंग द रोटेशन विच आर अवे फ्रॉम द sun that experience night. So that's why the time is different, and even the time is different because of, you can say, revolution also. Clear? Gaurish, it is clear? Yes, ma'am. Why you are talking? What happened? No, Hanji, don't do this, beta. Don't do this. Hanji, any other doubt? Yes, Drishti. Your name? मैम जो आपने अभी शॉर्ट नोट बोला था हिमालयस के ऊपर, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था? First आप easy बताओ that northern mountains are lies or situated on the northern side of India. These are divided into different. Yes, don't do बच्चे. Why you are creating again and stop it? Why you are touching it again? Yes. Next is these are divided into different ranges. First is Greater Himalaya, second is Middle Himalaya, third is Shivalik. Then third you can tell that these mountains are the storehouse of water. Fourth, the rivers from the mountains can be used for hydroelectricity. Then these many hill station lies on these ranges, and people in the summer season they you can say use these mountain hills for tourist places also. So you can write as many as point here. Even you can write the name of hill stations also. The hill station lies on these like Jammu and Kashmir,
मंसूरी, ठीक है, डलहौजी एंड मनाली, हाँ शिमला। क्लियर, वेरी गुड। एनी अदर डाउट? नो No, मैम ma'am. इट्स अप टू यू दैट यू No, कैन ma'am. राइट, यू कैन एक्सप्लेन। अच्छा, आप हिमालय का मीनिंग भी बता सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमालय? हाँ जी, हिम का मतलब क्या होता है? स्नो। Him आलिया, are the adobe of snow. aboard का मतलब होता है हाउस ऑफ स्नो। यू कैन राइट दिस आल्सो। इट्स अप टू यू दैट एज मैनी एज पॉइंट्स यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स। द कंसेप्ट शुड बी Okay. क्लियर। क्लियर बच्चा? हाँ जी, Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी Thank मैम। you. हाँ जी, आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी, यस मैम, जो एस्ट्रो जैसे जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं और मैम जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं मैम, वो दोनों सेम होते हैं? मतलब उन दोनों के जो उन दोनों का वर्क सेम होते हैं, वो अलग अलग वर्क करते हैं, मतलब अलग अलग प्रोफेशन होते हैं उनके? you want the difference between astronauts and astronomers? नो मैम, एस्ट्रोनॉमर्स एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट। Astronomers, they just calculate the movement of sun and moon. Okay, sometimes they do predictions also. Astronomers like Aryabhatta, है ना, वो predictions भी करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स जो है दैट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, न्यूमेरल्स जो होते हैं ना, न्यूमेरिक्स होते हैं, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज के साथ कैलकुलेशन करते हैं। लाइक इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट डिस्टेंस of your earth from sun, then what is the formula for calculating? That is a part of astrophysics, and just calculation, that is a part of astronomy. It is clear? ओके मैम, ओके मैम। Clear? Any doubt? यस मैम। नो मैम। Okay, now further you can explain second physical feature, that is Nadran fertile plain. Second feature, you can write as many as points according to this. सबसे पहले आपने ये बताना है that northern Indian plains lies to the south of Himalayas. बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम साउथ क्यों, कि ये साउथ में थोड़ी है। साउथ का मतलब है हिमालयस की साउथ में है। अगर हिमालयस की बात करें तो ये हिमालयस का है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, भी ये है साउथ। इसका मतलब है, कई बच्चे पॉइंट ये लिख देते हैं दैट इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयस, तो इसका मतलब ये है कि हिमालयस के साउथ में है। लेकिन अगर आपको ये नहीं याद रहता, आप जस्ट इतना बता सकते हो दैट नदर्न फर्टाइल प्लेन्स लाइज इन द नदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। मैनी स्टेट्स आर, यस बेटे स्टैंड अप, मैनी स्टेट्स लाइज इन दीज प्लेन्स। पंजाब, गुजरात, यहाँ पे है पंजाब, ठीक है, यहाँ पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। आप ये स्टेट्स बता सकते हैं कि हरियाणा, ये सारी स्टेट्स नदर्न फर्टाइल प्लेन्स में आती है। फिर आपने ये बताना है कि दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय विच रिवर? गंगा, यमुना एंड मैनी ट्रिब्यूटरीज, एंड ड्यू टू दीज रिवर्स द सॉइल ऑफ दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल। फिर आपने ये बताना है व्हाई पीपल प्रेफर टू लिव दीज river plains, because job employment facilities are there, water, yes it, water is easily available, ठीक है, electricity problem is not here. Sit down बच्चे। हाँ जी, clear? तो आपने northern fertile plains, yes tell me which are the features of northern fertile plain? You are talking now, that's why I have told you. हाँ जी, yes बेटा। दे आर थिकली का मतलब होता है कि वेरी मतलब डेंसली पॉपुलेटेड। हाँ जी, देन these plains are formed with the rivers, कौन सी रिवर्स हैं? इंडिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, suitable climate। हाँ जी, हाँ, this is the reason here high concentration of population is, so you can write, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड जो फिजिकल फीचर जो है दैट इज, यहाँ पे आपने बताना डेजर्ट एरियाज के बारे में। यस, एनी 5 पॉइंट्स फॉर थार डेजर्ट, बट वेरी इजी। सबसे पहले आपने ये बताना है दैट ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट। ये एरिया याद रखो, ये कौन सा है? वेस्ट में है, तो ये वेस्ट की तरफ है। नंबर 1, ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट और इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री।
सेकेंड, फिर हमने ये बताना है दैट दिस द क्लाइमेट ऑफ दिस एरिया इज हॉट एंड ड्राई विद लेस रेनफॉल. थर्ड आपने बताना है द सॉइल ऑफ दिस डेजर्ट और एरिया इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और कल्टीवेशन. ओनली thorny bushes or shrubs can be grown and the animals can survive here is camel. तो ये आपने इसके फीचर्स बताने. रेस्ट वी विल डू टुमारो. क्लियर?